کے بہت ہی مشہور شاعر اکبر الہٰبادی نے شروع کی تھی۔ ان کی شاعری میں انگلش الفاظ کی آمیزش ہوتی تھی اور وہ بڑے اہتمام سے انگلش الفاظ کی آمیزش کے ساتھ اردو شاعری میں انہوں نے اپنا پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ پھر اس کے بعد میں ہوا یوں کہ وہ چیپٹر لگ بھگ اکبر الہٰبادی پر ہی کلوز ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب جو ہمارے حیدرآباد کی آن شان بان ہے، انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اکبر الہٰبادی کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری میں انگلش الفاظ کو برتنے کا سلیقہ اپنایا اور اس طرح سے محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب ساری اردو دنیا میں انہوں نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، منفرد شناخت بنائی ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو چھوٹا ہوں اور بڑی بات والی بات ہو جائے گی، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ حیدرآباد کے 3 مینار ہیں ادب طنز و مزاح کے، حمایت اللہ صاحب، طالب خونمری مرحوم اور مصطفیٰ علی بیگ صاحب۔ طالب خونمری صاحب مرحوم وہ ہمارے درمیان اب نہیں رہے، لیکن اب یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب موجود ہیں اور ان کی سرپرستی ہم سب کو حاصل ہے، اور یہ حیدرآباد کے لیے اعزاز ہے محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب۔ ان کی شاعری میں اتنا ہی کہوں گا کہ محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب کے بہت سے جلسے تہنیت میں ان کے جشن میں منائے گئے، لیکن پھر بھی اب تک ان کے شایان شان ان کی جو قدر شناسی کی جانی چاہیے تھی، میرا ایسا خیال ہے کہ وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال انہی کلمات کے ساتھ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب کو اور جناب صادق صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد حیدری صاحب۔ میں سلطان مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ جناب سلطان مرزا صاحب، کل یہاں پر ان کے گائیکی کا پروگرام ہے اور وہ ہمارے درمیان کچھ وقت کے لیے آج تشریف لائیں۔ کل یہاں محفل سنگیت ہے جس میں سلطان مرزا اپنے آواز کا جادو جگائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ جناب عزیز صاحب سے گزارش کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ معزز حاضرین اکرام، ابھی شاہد حیدری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں مصطفیٰ علی بیگ صاحب کا مختصراً لیکن جامع تعارف کرایا، اور واقعی یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج مصطفیٰ علی بیگ صاحب کی سرپرستی تمام دنیا ادب کو حاصل ہے۔ بہرحال اب میں فرید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فرید صاحب۔ صدر جلسہ برادران سید مسکین احمد صاحب، معزز مہمانان خصوصی اور آج کے نوشا ہمارے بزرگ شاعر اینگلو اردو شاعر علی جناب مصطفیٰ علی بیگ صاحب، اور سب سے بڑھ کر میرے عزیز ترین مہمانان آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ سے ہماری شاعری ہے، ورنہ ہماری شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اس محفل کے کرتا دھرتا میرے عزیز دوست ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب، جن کے ہاں ڈگریوں کا ایک طویل فہرست ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کا مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب نے اس طویل پیریڈ میں مدت میں 1985 سے جو کارنامے انجام دیے ہیں، 310 مشاعرے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شاعری کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے مجھے آج تقریباً 18 سال ہوتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ایک بھی مشاعرہ منعقد نہیں کیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ 310 مشاعرہ منعقد کرنے والی شخصیت کا کیا نہیں مرتبہ ہوگا، وقار ہوگا اور کنٹریبیوشن ہوگا شعر و شاعری کے فروغ میں۔ اب رہی بات، میں ان کو ان خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 8 روزہ پروگرام جو انہوں نے شروع کیا ہے، روز الحمدللہ اچھے سامعین آ رہے ہیں، اچھے رفقا ان کے آ رہے ہیں، مقررین آ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز، انجینئرز اور ادبا تشریف لا رہے ہیں، اور بڑے کامیابی سے پروگرام چل رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آج 5ویں دن انہوں نے محترم مصطفیٰ علی بیگ صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی ہے۔ ان کے خدمات کی طرف میں انہیں خوشی ہوگی، شان خوشی ہوگی اور مومنٹو پیش کیا جائے گا۔
मोहतरम हाज़रीन इकराम, मोहतरम सदर जलसा, मुस्तफ़ा अली बेग के बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहूँगा कम है, चूँकि अपने तालिब इल्मी के दौर से जब 1971 में कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा दिलानी हैदराबाद के बहचे तालिब इल्म पब्लिक में बैठ कर सुन रहा था, तो ये गज़ल सरा थे। लोग फेंके गंदे अंडे क्या शायर ने किया, लोग फेंके गंदे अंडे क्या शायर ने किया, शेर की महफिल में क्रिकेट का मज़ा सा आ गया। तो उस ज़माने से मैं इनका फ़ैन हूँ और वक्त बदलता रहा, ये तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इंडिया से बाहर निकले, हैदराबाद से बाहर निकले, मुख्तलिफ़ रियासतों में मुशायरे लूट कर आए। उसके बाद सऊदी अरेबिया से इन्हें दावतनामा है, वहाँ भी इन्होंने पढ़ा। फिर यूरोप के कंट्रीज़ में भी उन्होंने मुशायरे पढ़े, अमेरिका, कनाडा, फिर इधर कुवैत में भी जाकर मुशायरे पढ़े। बल्कि हर जगह इनका नाम बड़े इज़्ज़त से एहतराम से लिया जाता है और इन्हें मदद किया जाता है। आज भी इनको अमेरिका से दावतनामा आया है। खराबी सेहत के बावजूद पढ़ तो रहे हैं, इन करीब जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। बारकैफ इनके मिज़ाह या कलाम में तंज़ की एक बेहतरीन कार्ड भी हम महसूस करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक को हंसाया जाए और तालियां पिटवा के आके अपनी जगह ली जाए। जगह जगह ये पॉल्यूशन के बारे में बड़े अच्छा अशार इनके पास हैं। और ये फैशन के बारे में हाल ही में कहा था कि बच्चे के कान में बाली थी, उस पर भी उन्होंने बेहतरीन ख़ता कहा कि जिसमें उनके वालिद कहते हैं कि बेटा तू ये बाली क्यों पहनता। बच्चा कहता है कि पापा ये तो फैशन है। अरे कैसा फैशन है, मुझे नुकसान हो रहा है। तो कैसा नुकसान है, जो लोग तेरी बहन को पसंद करें तुझे पसंद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने उसके बारे में एक ख़ता कहा। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे रगों को पकड़ लेती, नफ्स पे हाथ रखती हैं, इतना अच्छा कलम ये कहते हैं। और फिर ये दिन भी आ गया जब 1995 में अचानक मुझ पर शायरी का दौरा पड़ा और मैं भी एक शायर बैठे बैठे शायर बन गया। तो इनके साथ पढ़ने का मुझे मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और सेहत आफियत के साथ दराज करे। उम्र दराज करना कोई बड़ी बात, मगर सेहत आफियत के साथ उम्र दराज होना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा भाई, मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं हमेशा आपका ताउफ़ करते रहेंगी। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपका जश्न मनाया जा रहा है। जैसा कि शाहिद अजली ने कहा, इनके शायर शान कोई जश्न नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़कर मैं शाहिद मिलकर कोई ऐसा मौका तलाश करेंगे कि इनके शायर शान कोई जश्न हो। खुदा हाफ़िज़, यार जिंदा सोहबत बात। हज़रत फरीद साहब ने कहा कि मैं हाल ही में शायरी में ख़त्म रखा हूँ, लेकिन इन्होंने शायरी में ख़त्म रखते शायरी के मैदान को ऐसा इसमें इस तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ा कि सब देखते रहे। और माशाल्लाह से ये हैदराबाद से निकल कर उसी घोड़े पर हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं और हिंदुस्तान के दीगर मुकामात पर भी जाकर अपनी शायरी का सिक्का जमाते हैं। बहरहाल आइए, हमारे दरमियान एक मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब हैं जो तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के सदर हैं। वो भी अपने ख़यालात का मुख्तसरन आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। उसका मिस्किन अहमद साहब भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। उसके बाद मुस्तफ़ा अली बेग साहब की गुलपोशी और शाबाशी की जाएगी। मैं बड़े अदब और एहतराम से सदर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू जनाब आरिफुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुस्तफ़ा अली बेग साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब आरिफुद्दीन अहमद। मोहतरम सदर जलसा डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब, हमारे करम फरमान सैयद मिस्किन अहमद साहब, मुमताज़ गज़ल सिंगर सुल्तान मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर नईम साहब, जिसके बारे में तहनीती जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, मुशायरे की दुनिया के बहुत बड़े रहबर और रहनुमा मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग साहब, सामईन और ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि अदब की दुनिया में दूसरे किस्म का अदब अलमिया ये है कि शायरी जो मिज़ाहिया शायरी को दूसरा अदब सेकेंडरी पोजीशन दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी मुशायरे होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे और आलमी पैमानों पे जो मुशायरे होते हैं, ज़्यादा मुशायरे मज़ाहिया मुशायरों में सरों का समंदर रहता है, लेकिन अदब के मुशायरे में बहुत कम लोग। नई नस्ल को लिटरेचर से बहुत कम वाकिफ़ है, लेकिन मुस्तफ़ा अली बेग साहब जब मुशायरा पढ़ते हैं
तो दिल और दिमाग पर छा जाते हैं। इतना मुतासिर कुन अंदाज रहता है उनका, तो देर तक वो बाद हजरात को समझ में नहीं आता, बाद में जाके वो घर में भी हंसते हैं। तो हजरात एक बार जोरदार तालियों से इनकी दिल की गहराइयों से इस्तेमाल हो। और आज के नई नस्ल की जिंदा दिलों की धड़कन है मुस्तफ़ा अली बेग साहब का, और मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू की तरफ से उनको सेहत और आफियत से और हमारे सरों पर हाथ रखे और इनका आशीर्वाद रहे, इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, ये थे जनाब आरिफुद्दीन अहमद साहब, सदर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मिस्किन अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल करें। सदर इदारा डॉक्टर सादिक साहब, हजरत मिस्किन अहमद साहब सदर हैं अंजुमन मुहब्बान उर्दू के, जिसके तहत कई आलमी और कुलीन मुशायरे मुनक़िद होते हैं। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ीन और जिनके एजाज़ में महफ़िल मुनक़िद की जा रही है, मुस्तफ़ा अली बेग साहब, ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर सादिक साहब का जुनून 1985 में शुरू हुआ और उन्होंने 301 मुशायरे मुनक़िद करते हुए बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुशायरों का इनेक़ाद, उसके लिए जो तैयारियां होती हैं, चाहे मुशायरा छोटा हो कि बड़ा, गुज़िश्ता 30-31 साल से, मैं 1981 से मेरा जुनून है। 81 में जो है ना, मैं तंजीम कायम करते हुए मेरे वतन में सिद्दीपेट में कुलीन मुशायरे मुनक़िद किया। और अभी आरिफ अदीन कह रहे थे कि उनके एजाज़ में बहुत बड़ा जलसा होनी चाहिए। यकीनन मैं इस बात का क़ाइल हूँ कि किसी भी शायर को, चाहे वो संजीदा हो या मज़ाहिया, इतने बरस जब शायरी करता है, आवाम के दिलों में जो है ना घर कर जाता है, एक मैसेज छोड़ जाता है वो, तो हमें चाहिए कि उस शायर की ज़िंदगी में ही हमें बहुत बड़े पैमाने पर तक़रीब मुनक़िद करते हुए उनकी खिदमत का, उनकी शायरी का इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे होता यह है कि थोड़ा हम मुर्दा परस्त हैं, मरहूमीन की याद बड़े एहतमाम से करते हैं, लेकिन मैं उसका क़ाइल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदा शायर का उसकी ज़िंदगी में ही जो है ना खिदमत का इतराफ़ करना चाहिए। 1-2 मिनट में आपके मैं लेना चाहता हूँ, अगरचे थोड़ा सा आपको गिरा गुजरा तो मेरे लिए बर्दाश्त कीजिए। मुशायरों का इनेक़ाद बहुत मुश्किल है और हैदराबाद से हट के भी मैं अक्सर मकामात पर जाता हूँ दीगर रियासतों में, लेकिन हैदराबाद के जो उर्दू तंजीमें हैं, यहाँ का जो सलीक़ा तरीक़ा है, सारे हिंदुस्तान में बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ के सामाइन का जो मेयार है, यहाँ जितने महज़िब सामाइन हैं, मुझे सारे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आते। मुशायरों में बिल्कुल हल्का फुल्का मुजाहरा होता है, शायर को जो दाद देते हैं बहुत मामूली तरीक़े से, बहुत ओछेपन से, हमें बाज़ों को देख ही नहीं होता है कि मुशायरा हो रहा है या ख़वाली हो रही है। लेकिन हैदराबाद के सामाइन बेहद अच्छे, बेहद महज़िब सामाइन हैं। मैं अहबाब जब आके बैठते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमारे वतन के बाद मैं हैदराबाद में भी गुज़िश्ता 8-10 साल से मुशायरे करने लगा हूँ और ये मेरा मुसम्मम इरादा है कि जब तक भी हमारी तंजीम के तहत मुशायरे होंगे, सामाइन के लिए कोई दाखिला फ़ीस नहीं होगी। मैं उस